Hello students. So in previous lecture we studied about the multiplication of matrices. Now we learn some properties of multiplication of matrices. So earlier we discussed that the commutative law does not exist for multiplication. Okay. So now second law is the associative law, which says that the AB into C is equals to A into BC. This is possible if equality holds. So there are three matrices for which this statement is true. Okay, और we learn this without proof. Okay, आप लोगों को सिर्फ इसको learn करना है कि इसका proof अभी आप लोगों के syllabus में नहीं. So the associative law is held for matrix multiplication. Okay. Second is distributive law. So distributive law says that the A into B plus C is equals to AB plus AC. Here order matters. Okay. So AB है तो AB ही लिखो, BA मत लिखना. Okay. And then similarly AC. Okay. And then second is कि suppose given that कि A plus B into C, then AC plus BC. Okay. So here addition and multiplication both apply simultaneously. Okay. So this is the distributive law for matrix multiplication. Third one is the existence of multiplicative identity. So we earlier discussed that the existence, which means the every identity element, मतलब कि identity element for every matrix is unique. Okay. So यहाँ पे multiplicative identity is unique. We know that कि multiplication आइडेंटिटी की बात अगर हम लोग रियल नंबर में कर रहे हैं तो रियल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1. और साइमल्टेनियसली वी हैव इन मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ओके, हियर A is always a square matrix. Why? So we know that the identity matrix is only a square matrix. So यहाँ पे अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो ऑब्वियसली A का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? I के जितना. मतलब कभी भी हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर की बात नहीं कर सकते कि A का ऑर्डर एज्यूम कर सकते हैं, फिर वहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा वो सब यहाँ पे ध्यान में नहीं रखना है. सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो कब एग्जिस्ट होगी कि जहां पे आप लोग लिख सकते हो AI is equals to IA is equals to A, where A is the always a square matrix. Okay, so these are the some properties of multiplication of matrices. Okay, now we do some sum of exercise 3.2 which is based on matrix multiplication. Okay, so first is given that the question number 13 ki if fx is equals to this matrix, then we have to show that fx into fy is equals to fx plus y. प्रूव करना है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? LHS. We have to start with LHS and we conclude is our conclusion is RHS. Okay, LHS here given that we fx fy. Okay, f of x दिया हुआ है. अगर we want to write कि f of y, then सिर्फ यहाँ पे हमें किसको रिप्लेस करना है? x को रिप्लेस करना है. किसके साथ? y के साथ. तो अगर हमें f of y लिखना हो तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा? सिर्फ y. So हमें f of y भी मिल जाएगा. And then we multiply both the matrix and we want our answer is in the form fx plus y. Okay, we will say that कि f of x is what? Cos x minus sin x 0. Okay, sin x cos x 0 and then 0 0 1. Okay, and similarly f of y is what? Cos y minus sin y 0 sin y cos y 0 and then 0 0 1. Okay, and now we multiply this both matrix. Order क्या ध्यान में रखना है? Horizontal and vertical. दोनों का ऑर्डर सेम है, देन
we multiply this matrix. Okay, so first element is cos x into cos y, cos x into cos y, माइनस क्या होगा sin x sin y. सेम वे में cos x minus sin y, that means की minus cos x sin y, and then cos minus cos x sin y, then second element minus sin x cos y, तो minus sin x cos y, और थर्ड तो 0 into 1 है तो वो 0 हो जाएगा. सिमिलरली cos x into 0 0, sin x into 0 0 and 0 into 1 0, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा 0. ओके, नाउ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो sin x into cos y, sin x into cos y, फिर प्लस में क्या होगा cos x sin y प्लस cos x sin y. ऑर्डर ध्यान में रखना, सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम. यहाँ पे हम लोग एलिमेंट कौन सा लिख रहे हैं, A to 1, दैट मींस के सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी है, सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम. सेम वे में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो sin x into minus sin y, तो क्या हो जाएगा minus sin x sin y प्लस cos x cos y, एंड थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा sin x into 0 cos x into 0 and 0 into 1, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा 0. ओके, सेम थर्ड 0 into cos y 0 into sin y 1 into 0, तो ये एलिमेंट 0. 0 into sin 0 into cos and 1 into 0, तो this element is also 0. and then 0 into 0 0 into 0 and 1 into 1, तो फाइनल आंसर इज 1. Okay, so now we go to our 11th standard की, वहां पे हमने ट्रिगोमेट्री के कुछ फॉर्मूला देखी थी. अगर ध्यान से देखोगे तो ये कुछ फॉर्मूला है. किसकी फॉर्मूला होगी cos x plus y की, which is cos x cos y minus sin x sin y. तो here we have write that कि cos x plus y. सिमिलरली यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो cos x sin y प्लस sin x cos y, किसकी फॉर्मूला होगी sin x plus y की, दैट मीन्स की माइनस sin x plus y 0, देन sin x cos y plus cos x sin y, which is formula of sin x plus y, and then sin x sin y plus cos x cos y. तो ये उसको अगर रिवर्स में लिखोगे दैट मींस की cos x cos y minus sin x sin y, which is the formula of cos x plus y. ओके, और बाकी के एलिमेंट एज इट इज. नाउ यू लुक एट हियर केयरफुली, देन यू नो दैट कि दिस इज द मैट्रिक्स f of x plus y. f of x में x को हम रिप्लेस करेंगे x plus y से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x plus y, देन माइनस sin x plus y, sin x plus y and cos x plus y. बाकी के एलिमेंट एज इट इज. तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ f of x plus y, which is RHS. ओके, सो our sum is complete कि हमने क्या दिखा दिया कि f of x into f of y is equals to f of x plus y. ओके, एवरी टाइम अगर आप लोगों को कहीं पर भी दिया हुआ है कि शो दैट या तो प्रूव दैट, तो हम सिंपली यही चीज करेंगे, LHS is equals to RHS. ओके, नाउ वी मूव ऑन आवर सेकंड सम, क्वेश्चन नंबर 15. तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि फाइंड a square minus 5a plus 6 है इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है. ओके, सिंपली. अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो I होगा आइडेंटिटी, यहाँ पे हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे A जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कौन सा लेंगे 3/3 का. तो I हमारे पास है, A हमारे पास है, सिर्फ हमें क्या
ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए फर्स्ट थिंग कि सपोज हम लोगों को एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है कि एक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो सेम चीज हम लोग मैट्रिक्स में भी अप्लाई करेंगे कि सपोज हमें एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए। इन सेम वे सपोज यू आर टू गिवन कि ए क्यूब, तो ए क्यूब भी कैसे फाइंड करोगे, दैट मीन्स कि ए इंटू ए इंटू ए, दैट मीन्स कि यू हैव टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए 3 टाइम्स। ओके, सो कहीं पर भी अगर ए क्यूब दिया हुआ है तो आप लोग सेम वे में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। सपोज यू हैव टू गिवन 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, देन व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट मल्टीप्लाई a 2 टाइम्स, दैट मीन्स कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ये a को एज इट इज रखो, एंड देन a इंटू a का जो मैट्रिक्स मिले उसके साथ a का मल्टीप्लाई करना है, तो अल्टीमेटली आप लोगों को a क्यूब मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट क्यूब नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन से आंसर फाइंड करना है। ओके, सो नाउ वी फाइंड फर्स्ट a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा, 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0, सेम मल्टीप्लीकेशन में 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। ओके, एंड नाउ वी मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स। ओके, सो फर्स्ट रो एंड कॉलम, तो 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, 0 इंटू 2 0 एंड 1 इंटू 1 1, दैट मीन्स कि 4 प्लस 1। ओके, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 भी 0 और 1 इंटू -1, आंसर क्या होगा -1। सिमिलरली 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, 0 इंटू 3 0 एंड 1 इंटू 0 0। सेम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 1 3। ओके, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 and 3 into -1 -3. Okay, and now last. Okay, second row and third column, so 2 into 1 2, then 1 into 3, that means 3 plus 3, or 3 into 0 0. Okay, and now this row and first column, to 1 into 2 2, -1 into 2 -2, and 0 into 1 0. Similarly 1 into 0 0, -1 into -1 and 0 into -1 0. And last क्या होगा 1 into 1 1, -1 into 3, that means कि -3 और 0 का आंसर क्या हो जाएगा 0। ओके, सो फाइनली ए स्क्वायर का आंसर हमें क्या मिलेगा 4 plus 1 5 -1 2, then ये 6 plus 3 9, ये -2, ये 5, 2 minus 2 is 0, -1 and 1 minus 3, that means the -2. Okay, now फाइंड क्या करना है हमें, a स्क्वायर -5a plus 6i की वैल्यू, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे कि क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर -5a plus 6i। सो a स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हमें, 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2 -5। a क्या था हमारे पास 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस
कौन सा लेना है, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स कि 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. ओके, नाउ वी जस्ट ऐड एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन करना है और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाए. ओके, दिस मैट्रिक्स इज एज इट इज, दैट मीन्स कि 5 minus 1 2, 9 minus 2 5, 0 minus 1 minus 2. 5 को मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स कि वो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पे 10, ये 0 5 10 5 15 5 minus 5 and 0, और यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करना है तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6. And now we just add the corresponding elements. Addition करना है तो यहाँ पे 5 minus 10, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, प्लस 6. सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट -1 -0 प्लस 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं. देन 2 -5 और यहाँ पे 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं. ओके, 2 -5. देन 9 -10 प्लस 0, फिर -2 -5, दैट मीन्स की -2 -5 प्लस 6 एंड 5 -15 प्लस 0. देन थर्ड रो कौन सी होगी हमारी, 0 -5, दैट मीन्स की -5 प्लस 0, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं. -1 माइनस माइनस प्लस 5, दैट मीन्स की -1 प्लस 5 और प्लस 0. एंड लास्ट इज -2 -0 प्लस 6, दैट मीन्स की -2 प्लस 6. Okay, so our last answer is 5 plus 6 11 minus 10, that means ki 1 -1 and 2 minus 5 is -3. 9 minus 10 is -1. यहाँ पे -5 -2 -7 plus 6, that means ki -1, और यहाँ पे -10. ये -5 5 minus 1 is 4 and 6 minus 2 is 4. Okay, so our final answer is a square minus 5a plus 6a is equals to this matrix. Okay, सेम वे में मैंने आप लोगों को बताया कि सपोज a क्यूब दिया हुआ है तो कैसे फाइंड करना है. सपोज आप लोगों को दिया हुआ है कि इज इक्वल्स टू o, दैट मीन्स कि आप लोगों को जस्ट प्रूव करना है, इसको LHS लेना है और RHS में क्या मिलना चाहिए, 0 मैट्रिक्स. जैसे हमने यहाँ पे ये मैट्रिक्स फाइंड किया, वैसे वहां पे कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, 0, तो आप लोगों का LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव हो जाएगा. सेम वे में सपोज k की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ तक तो सेम ही है. सपोज इक्वालिटी दी हुई है या कुछ भी, इक्वालिटी यूज करके आप लोग k की वैल्यू भी आराम से फाइंड कर सकते हो. हमने ऐसे सम पहले भी किए हो. सिर्फ वहां पे एडिशनल क्या चीज होगी कि a स्क्वायर या a क्यूब फाइंड करना होगा, तो वो आप लोग मल्टीप्लीकेशन थ्रू कर सकते हो. ओके, सो नाउ नेक्स्ट लेक्चर वी डू सम मोर एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. ओके, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी. ओके, थैंक यू.